In the last classes in trigonometry, you have studied the ratio of the sides of a right angle triangle. In the right angle triangle, if this is the theta, the opposite side will be perpendicular, and this is the 90 degree, the opposite side will be hypotenuse, and third one side will be base. There will are the total 6 trigonometric ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta. And to learn, you have to follow always the same sequence. That will be easy: sin, cos, tan, cot, sec, cosec. Okay. Angle. Measure of angle is the amount of rotation of a given ray. Suppose this is a given ray. This one is a given ray. The starting position of the ray is called initial side, and this given ray is rotating about some point. This point will be called initial point, and also it's called vertex. After rotation in anti-clockwise direction, the final position of the given ray was this. That's why this final position of ray is called terminal side. Since rotation is anti-clockwise direction, the angle will be positive angle, and this will be angle. The amount of rotation of a given ray about some given point is called angle. You may understand कि if this rotation in the clockwise direction, suppose this is initial point, this is a ray, and ये इस डायरेक्शन में रोटेट करें ऐसे, तो this is initial and this one is a final, and the amount of rotation, इतना amount rotate हुआ है clockwise direction में, तो this will be angle, but this will be negative angle. Suppose इनिशियल पॉइंट और ये इनिशियल पोजीशन रे की है, और ये रोटेट करके इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए, इस तरीके से ओवरलैप कर जाए, और फिर इनिशियल रे और फाइनल रे, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों एक दूसरे पे कंसाइड कर जाए, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, तो दिस इज वन इज नोन फुल रोटेशन. The SI unit of the angle, SI unit of angle is actually radian, but most popular unit is degree. Most popular unit जो popular है unit, that is degree. तो हमको इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में रिलेशनशिप फाइंड करना है, फाइंड नहीं करना है, जानना है. पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और जब इनिशियल पॉइंट के अबाउट आपका ये एंगल, ये रे एक कंप्लीट रोटेशन ले लेता है, तो दिस इज कॉल्ड वन रेवोल्यूशन, and this is pi, 2 pi. This whole thing is 2 pi. तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो एंगल ऑफ रोटेशन है दैट इज़ अ 2 pi. सपोज कोई कहता है कि 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, इट मीन्स एक सेकेंड में 5 रेवोल्यूशंस ले रहा है वो जो है, कोई रे है, और 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड वर्ड मीन्स हुआ कि 1 revolution, 2, 3 and this 5. तो 5 into 2 pi पर सेकेंड इतने डिग्री वो एंगल रोटेट हो जा रहा है. This pi radian equal to 180 degree can also be represented in this way. रेडियन का सिंबल दिस, पाई के ऊपर सी लगा दीजिए, और दिस इज द 180 डिग्री. नाउ 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री. इसको पाई की वैल्यू ऑलवेज यू यूज 22/7. If you simplify this, you will get
57 डिग्री एंड सम पार्शियल फ्रैक्शन 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और जब आप जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे यू विल गेट 16 मिनट. Therefore 1 radian equal to 57 degree 16 minute. Similarly you can convert from this relation 1 degree equal to pi upon 180 radian. जब पाई की वैल्यू 22/7 और सिंप्लीफाई करेंगे 0.01746 रेडियन अप्रॉक्स मिलेगा. पूरा नंबर फिनिश नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, बट अप्रॉक्स वैल्यू ये आप याद रखनी. तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी ऑलवेज. एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, 25 डिग्री टू चेंज इनटू द रेडियन. एज यू नो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देन 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, and therefore 25 degree is equal to pi upon 180 into 25 radian. As you know, in the previous line 1 degree equal to 0.01746 radian, put the value. और इसीलिए कहा था कि इसको लर्न करके रखो ताकि कैलकुलेशन करने में आपको आसान रखेगा. Put the value of this pi upon 180 and multiply by 25, you will get 0.4365 radian. In the second part there is minus 47 degree 30 minute you have to change in the radian. Here minus means is just only angle is measured in the clockwise direction. So first you change the 47 degree 30 minute into the degree, and then the all angle which are in the degree you will get change into the radian. 47 डिग्री 30 मिनट मीन्स दिस इज द 47 डिग्री कंप्लीट एंड 30 मिनट पार्शियल है. 30 मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए. 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, तो जब 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे आप तो 60 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये 30 मिनट डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा. यू विल गेट 1/2 डिग्री. 47 डिग्री एंड 1/2 डिग्री मीन्स 47 एंड 1/2 डिग्री. इस 47.5 डिग्री इक्वल टू, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 47 इंटू 2 प्लस 1 95/2 डिग्री एंड दिस पाई अपॉन 180 इंटू 95/2 रेडियन में कन्वर्ट हो गया. पाई अपॉन 180 वैल्यू 0.01746 इन पुट कर दीजिए और इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए. यू विल गेट 0.82935 रेडियन. अप्रॉक्स वैल्यू ऑलवेज मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा. इन क्वेश्चन 3 देयर इज गिवन 360 revolutions per minute. First of all, 1 revolution is equal to 2 pi radian, as you know. Therefore the whole angle measurement will be, amount of angle will be 360 into 2 pi radian per minute. इतना amount of rotation है per minute. पर सेकेंड में कितना होगा? कम होगा. 360 इंटू 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड. सिंप्लीफाई कर लिया, यू विल गेट 12 पाई रेडियन पर सेकेंड रिवोल्यूशंस या एंगल, अमाउंट ऑफ एंगल इन टर्म ऑफ रेडियन. इतना 12 पाई रेडियन पर सेकेंड रोटेट हो रहा है. नेक्स्ट वन इज द, आपको याद रखना होगा कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर. इन टर्म ऑफ सर्किल अगर समझना चाहें तो दिस इज़ द इनिशियल साइड एंड दिस इज़ द टर्मिनल साइड. एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर किया गया है, दिस इज़ थीटा, तो दिस वन इज़ एल आर्क. तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ये ऑलवेज आपको लर्न रखना पड़ेगा. एंगल इक्वल टू एल अपॉन आर, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू का यूनिट होगा रेडियन. जो एंगल मिलेगा इन टर्म ऑफ रेडियन मिलेगा, इन टर्म ऑफ डिग्री आपको नहीं मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 7 से बात करें कि देयर इज़ अ पेंडुलम और उसकी जो पेंडुलम के जो थ्रेड है उसके लेंथ है आपका पास 75 सेंटीमीटर. इस तरीके से पेंडुलम है और ये 75 सेंटीमीटर थ्रेड की लेंथ है.
इसका जो टिप है वो आर्क को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमसे पूछा गया कि कितने एंगल ऑफ रोटेशन हो रहा है अगर लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर है। अगर फर्स्ट पार्ट मान लें 10 सेंटीमीटर है, सपोज पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो दिस इज़ एंगल, ये हमसे पूछ रहा है, दिस इज़ द 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस 10 अपॉन 75। ये जो एंगल मिलेगा इन टर्म ऑफ रेडियन मिला आपको, 10 अपॉन 75 रेडियन आपको मिलेगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए कि एनसीईआरटी बुक से जो एग्जाम्पल आपको गिवन है, अगर आप उन सभी एग्जाम्पल्स को सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेते हैं तो आप रिमेनिंग क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर सकते हैं।